So good morning. Up last lecture, we have seen the segment of GPS and differential global positioning system. Means how we calculate the our position with reference to the other GPS instrument. So DGPS and segment of GPS, that part we have seen in the last lecture. So the next part is the GPS signals. Actually, how we are getting our position, that it is very important, and that is the part in the whatever we cannot see, म्हणजे जे आपण पाहू शकत नाही असे सिग्नल्स की जे आपल्याला रिसीव्ह होतात आणि त्याच्यामुळे आपल्याला आपली पोझिशन मिळते. सो व्हॉट आर दोज सिग्नल्स? सो जीपीएस signals. So now you can see here the whatever transmitted signals from the satellites. So there are two types of signals are there. So L1 and L2 signals. So L1 signals carries a frequency of 1575.42 megahertz. So you can write these two because sometimes examination for MCQ such questions will be asked to you. What is the frequency of L1 signal and what is the frequency of L2 signal? So please write down these L1 and L2 signals frequencies. Maybe these values you will be help in the examination as the MCQ. So write down, there are two signals. So L1 signal is equal to the frequencies 1575.42 1575.42 megahertz. L1 signal is the frequency of L1 signal is 1575.42 megahertz, and second signal L2, the frequency of L2 signal is 1227.60 megahertz. 1227.60 megahertz. So write down these two frequencies of signals so that easily you can remember and you can write in examination also. So what is L1 signals? It means the frequency of L1 signal is 1575, but what is what L1 signal tell us? So L1 signal carries a navigational message. Navigational message, it means, so if you are driving, if you are moving in the car, if you are moving in the aircraft, so anywhere you are moving, so that navigation route is giving. So that navigation route signals we are getting as a L1 signals. So for that SPS code is there. For that SPS code is there, and SPS code is nothing but standard positioning services. Standard positioning services, that SPS code is there, that for the navigational message. Means navigation, it means we are moving in the any route. आपण एखाद्या कोणत्याही रूटवरून मूव्ह होत असेल, आपण म्हणजे कारमध्ये असो, कुठेही शिपमध्ये असो किंवा एअरक्राफ्टमध्ये असो, आपण कोणत्याही एका डायरेक्शन मूव्ह होत असेल तर ते मूव्ह होण्याची जी काय सिग्नल्स आहेत, ती डायरेक्शन आहेत, ते आपल्याला कुठून मिळते, तर दॅट इज दॅट थ्रू दी L1 सिग्नल्स. आणि त्याच्यासाठी SPS हा कोड आपल्याला त्याच्यामध्ये प्रोव्हिजन केलेले आहे सॅटेलाइट्समध्ये SPS कोडची, आणि तो SPS कोड इज नथिंग बट स्टँडर्ड पोझिशनिंग सर्व्हिसेस. So are you getting about the L1 signals? And that L1 signals is used for carries a navigational message. Here we have written carries a navigational message, and SPS code is there. Now second signal is the L2 signal. So the frequency of L2 signal is 1227.60 megahertz. 1227.60 megahertz इतकी L2 सिग्नलची फ्रिक्वेन्सी असते. That measures the ionospheric delays. It means ऍक्च्युली वी आर मुव्हिंग ऑर आवर लोकेशन, म्हणजे सॅटेलाइट ज्या डायरेक्शन मध्ये मूव्ह होत असतो अर्थभोवती, तर त्या अर्थभोवती मूव्ह होत असताना त्याची सगळ्या सिग्नल्स कडून सगळ्यांचे जे सिग्नल्स येतात 4 सॅटेलाइटचे, त्याचं जे काही इंटरॅक्शन होतं आणि त्या इंटरॅक्शन थ्रू जो एक फायनल सिग्नल पास होतो, दॅट सिग्नल इज द आयोनोस्फेरिक सिग्नल्स. म्हणजे 4 सिग्नलचं कॉम्बिनेशन होतं या सिग्नल्समध्ये. So that signals is the L2 signals, and that frequency is the 1227. So again
these signals are derived from the system clock of the 10.20 megahertz. म्हणजे जे सॅटेलाइट मध्ये जे क्लॉक बसवलेला आहे त्या क्लॉक मधून 10.23 मेगाहर्ट्जच्या इतक्या फ्रिक्वेन्सीला ते तिथून रिलीज होतात सिग्नल्स. These are derived from the system clock of 10.20 megahertz, and they have written here phase quadrature. It means सिस्टम क्लॉक मधून 10.20 मेगाहर्ट्ज इतक्या फ्रिक्वेन्सीला ते रिलीज होतात. सो फॉर दिस प्रोसेस टू ट्रान्सफरिंग दी सिग्नल्स L1 आणि L2, म्हणजे हे दोन्ही सिग्नल पास होण्याची जी काय प्रोसेस आहे ती प्रोसेस आहे ती CDMA प्रोसेस आहे. मॉड्युलेशन यूज्ड इज द डायरेक्ट सिक्वेन्स स्प्रेड स्पेक्ट्रम, म्हणजे CDMA म्हणजे कोड डिव्हिजन मल्टिपल असेस. ज्यावेळी आपण मोबाईल सुरुवातीला वापरत होतो त्यावेळी CDMA कार्ड असायचे मोबाईलमध्ये, जे सिम कार्ड असायचे ना ते CDMA कार्ड असायचे, म्हणजे कोड डिव्हिजन मल्टिपल असेस असं त्याला नाव दिलेलं असायचं CDMA. आता जी कसले आहेत, कसलं सिम कार्ड म्हणतो आपण CDMA च्या ऐवजी? वेगळं नाव काहीतरी आहे त्याला, GSM काहीतरी वेगळंच नाव. So this CDMA process was used for the transferring these signals. Are you getting? So these are here important part is, कारण का आपल्याला ह्याच्यावरती काही डिटेल काय असं जास्त विचारलं जात नाही. सिग्नल्स दोन टाईपचे सिग्नल्स असतात, हे एक इम्पॉर्टंट आहे. L1 आणि L2 सिग्नल्स असतात. त्याच्यामधला पहिल्याची फ्रिक्वेन्सी इतकी आहे, दुसऱ्याची फ्रिक्वेन्सी इतकी आहे. L1 सिग्नलचं काम काय, कॅरीज नेव्हिगेशनल मेसेज, आणि L2 सिग्नलचं काय काम आहे, ionospheric delay, major ionospheric delay. So this is the very important part for the two signals L1 and L2, and these are the frequencies. So again here you can see through the picture. So this is inbuilt process. हे आपल्याला काही दिसत नाही, आपण करत नाहीये. हे पाठीमागे जे घडतंय आपण फक्त काय करतोय, बटन प्रेस करत असतो आपली पोझिशन फाइंड आउट करण्यासाठी. हे इंटरनली सगळं घडतंय, पण हे सॅटेलाइट मध्ये त्याची सगळं इलेक्ट्रॉनिक्स जी काय सिस्टम आहे ही सॅटेलाइट मधून तिथून होत असते. हिअर दे हॅव रिटन, सी L1 कॅरीज सिग्नल, सो 1575 मेगाहर्ट्ज. Here L2 is, so finally L1 and here L2, two signals are there. So here for transferring the L1 signal, CA code 1.020 megahertz CA code is there, and for P code 10.23 megahertz, this is for the L2. आणि हे जे दिसतंय तुम्हाला या पद्धतीचं जे काही कर्वेचर हे दिसतंय, हे म्हणजे सिग्नल ट्रान्सफर या पद्धतीने होतात असं. सो आर यू गेटिंग? L1, L2, for L1 CA code is there 1.023 megahertz, and for L2 P code is there 10.23 megahertz. So finally by this process the finally L1 and L2 signals are moving. So this is the general sketch is there, inbuilt process is there, whatever coming in the satellites. म्हणजे हे सॅटेलाइट्स मध्ये अशा पद्धतीची प्रोसेस होते आणि आपल्याला फायनली L1 आणि L2 सिग्नल्स मिळतात की ज्याच्यापासून नेव्हिगेशन आणि आपली आयोनोस्फेरिक मेजर्स म्हणजे आपली पोझिशन. आयोनोस्फेरिक म्हणजे थोडक्यात आपण म्हणतो लॅंजिट्यूड लॅटिट्यूड टाइपच आपल्याला आपली पोझिशन मिळते. So okay, then okay, then next yes, I will explain in Hindi and English also, no problem. Okay, so here two types of signals we have seen, L1 and L2, and that frequency we have seen. This will be for the MCQ examination purpose, this frequency. Then next part, actually what is signals and where these signals are
what much time required to receive the signals, that here we will see. The satellites transmits as part of their unique spectrum signals a clock or timing signals. It means as a user, if we click our position, the our signals goes to the satellites, and satellites find the our position where we are, and for that the satellite is giving signals through the satellite clock. The one clock is set in the satellites. Through this clock we are getting the signals from the satellite only, and that signals are nothing but our navigation, means we are where we are moving and where our location, for our location and our direction route. For these two purpose, the signals we are getting from the satellites, these two signals are the L1 and L2, and from where we are getting, from the satellite clock, these signals we are getting. So that is the first point. Second point, the range or distance to the satellite is obtained by measuring how long it takes for the transmitted signal to reach the receivers. So how much time required to reach the signals to the receiver? It means, समझो हम कोई तो एक पोजीशन पे है और कोई सैटेलाइट स्पेस में है, तो अभी सैटेलाइट से और हमारा डिस्टेंस जितना है, जितना नजदीक है और जितना दूर है, उसके हिसाब से हमको हमारे पास सिग्नल पहुंचने में कितना टाइम लगता है ये मिलता है। हमारा और सैटेलाइट का डिस्टेंस कितना है, वही उसके हिसाब से हमको जो सिग्नल्स हमारे पास रिसीव होते हैं उसको टाइम कितना लगेगा, वो उसके ऊपर डिपेंड है कि हमारा और सैटेलाइट का डिस्टेंस कितना है। आर यू गेटिंग? सो द डिस्टेंस बिटवीन यूजर एंड सैटेलाइट्स डिपेंड्स अपॉन दैट how much time required to receive the signals to up to the receiver. Receiver means we are the receiver. Military people, if we are moving in the car, if we are moving in the aircraft, if we are moving in the ship, it means that is our location. From our location, how much long satellite is there, that distance is matter to reach the signals to us. That is the second point. And third point related to GPS signal is, it is not a true range. Means whatever signals we are receiving, that are the not true signals. Due to satellite error, maybe sometimes error will be there, but what is obtained is known as a pseudo range. Pseudo range, it means direct signals if we getting, that are the maybe wrong, always not, but may be wrong. But pseudo range, it means at the time of 4 satellites, whatever signals pass and that signals interact each other. हम क्या बोले कि कम से कम 4 सैटेलाइट लगते हैं सिग्नल ट्रांसफर करने के लिए, कम से कम 4 सैटेलाइट्स लगते हैं सिग्नल ट्रांसफर करने के लिए। तो 4 सैटेलाइट से सिग्नल्स मिल गए तो हमको हमारी पोजीशन मिल सकती है। तो 4 सिग्नल्स एक जगह आ गए, इंटरसेक्ट हो गए 4 सैटेलाइट के 4 सिग्नल्स, तो उसके बाद उस सूडो रेंज यहाँ पे लिखा है जो, उस सूडो रेंज तैयार हो जाती है। इट मीन्स the 4 signals coming or intersecting each other, and we are getting the correct position. So these 4 range or 4 signals are from different satellites intersecting, and we are getting one pseudo range, that is the one final signal from the 4 satellites. So that is related to third point. So first point is satellites are transmitting L1 and L2 signals. Second point is related to how much time required to receive the signals to us, that is depend upon satellite and our distance. And third point is, if one satellite is transferred, it means समझो एक सैटेलाइट ने सिग्नल ट्रांसफर किया और वो हमारे पास पहुंचा, तो वो सही हो सकता है ये हम नहीं कह सकते। एक सैटेलाइट का सिग्नल हमारे पास पहुंचा तो वो सही है, हम ऐसा नहीं बोल सकते। बट 4 सैटेलाइट ने मिलके हमको सिग्नल भेज दिए और वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट हो गए, तो हमको एक सूडो रेंज मिलती है उससे, वो चारों से, और वो एक रेंज और वो एक सिग्नल मिलेगा, वो सिग्नल हमारा फाइनल सिग्नल रहेगा और वो ट्रू पोजीशन देगा हमको। सो दिस इज रिलेटेड टू जीपीएस सिग्नल्स। सो
we have seen the actual process, segments, then differential GDPS, then one satellite signal, second satellite signal, third satellite signals, how to work GPS system, advantage. That much part we have seen in detail. Now we come to this GPS signals, and these signals are the L1 and L2 signals are there to locate our position. Now, next point is the sources of errors. Sources of errors, it means to find the our position, some errors may be there because we are receiving the signals from satellites, but signals are not received properly to us, then errors may be there. Are you getting? If हम कोई रास्ते से जा रहे हैं, तो रास्ते से हम बाइक पे मूव हो रहे हैं, कार पे हो रहे हैं, और बीच बीच में बहुत से खड्डे हैं रास्ते पे, तो क्या है, वो हमारे रूट में खड्डे हैं, इसका मतलब क्या हो गया, वो हमको एरर है ना, थोड़ा सा कुछ जाने के लिए एक स्टेशन से दूसरा स्टेशन हम पहुंचना चाहते हैं और बीच में कुछ रास्ता अच्छा नहीं है, खराब है, रास्ते में खड्डे है, तो हमको एरर आ गया, हमको टाइम, हमारा वहां पे पहुंचने का टाइम रिड्यूस हो जाता है। सिमिलरली हमको जो सिग्नल्स रिसीव होते हैं सैटेलाइट्स में, उसमें कुछ एरर्स आ सकते हैं, तो वो कौन कौन से एरर है, सोर्सेस ऑफ एरर, इसके ऊपर भी आपको एक थ्योरी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आर यू गेटिंग? सो व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ एरर्स, that question may be you will ask in examination, so that we will discuss what are the sources. So you can see here what are the sources of errors. It may be we cannot receive the signals from the satellites, that are the errors. So first is the user mistake. First error is the user mistakes. User means we all are, हम सब यूजर है। हम जब कार में मूव कर रहे हैं, एरोप्लेन में मूव कर रहे हैं, शिप में मूव कर रहे हैं, या कोई और लोकेशन पे है, और हमारा जो प्रोसेस है सैटेलाइट से सिग्नल्स रिसीव करके हमारी पोजीशन फाइंड आउट करने का, वो प्रोसेस गलत हो गया तो हमारा मिस्टेक है ना वो। हम किसी को हमारा एक नंबर मोबाइल नंबर है, और मोबाइल नंबर से हम किसी को कॉल लगा रहे हैं, और कोई एक नंबर में मिस्टेक हो गया, तो क्या हो जाता है, किसी को एक को लगने की वजह से दूसरे को फोन लग जाता है। सिमिलर यहाँ पे वैसा भी है, आपने जब कोई कोऑर्डिनेट्स अलग, हम आपको कोई आपका पोजीशन फाइंड आउट करना है, और वो दूसरा किसी का जो जीपीएस इंस्ट्रूमेंट है उसके हिसाब से आपको कंपैरेटिवली पोजीशन फाइंड आउट करना है, और आपने गलत कोऑर्डिनेट्स उसके लगा दिए। इट मींस आई हैव गिवन एग्जांपल टू यू, इफ वी आर at the college gate and we have to find the GPS positions, means longitude, latitude and altitude at college gate level, and you know the coordinates of railway station, Pandharpur railway station. So with reference to Pandharpur railway station, if you are receiving the or you are finding the your position, means your coordinate, and you have set the wrong coordinates of Pandharpur station in your GPS device, are you getting? आपने आपके जीपीएस डिवाइस में पंढरपुर रेलवे स्टेशन के जो कोऑर्डिनेट है वो गलत फीड कर दिए, तो क्या हो जाएगा, तो आपको इंफॉर्मेशन आपकी गलत मिल जाएगी ना। सो सिमिलर यूजर मिस्टेक, फर्स्ट मिस्टेक इज यूजर मिस्टेक। इफ द यूजर इज नॉट कैपेबल टू यूज द जीपीएस डिवाइस, देन सम देयर मे बी your position, if you are finding your position, there may be wrong position you will get. Are you getting? First, सबको समझ में आ रहा है क्या? फर्स्ट जो एरर आ सकता है वो कौन सा एरर आ सकता है, हम जो जीपीएस यूज कर रहे हैं वो गलत यूज कर दिया तो हमको गलत उसके पोजीशन मिलने वाले हैं। सो वही फर्स्ट है, तो यूजर मिस्टेक मतलब हमारा मिस्टेक जो है। सो देन सेकंड इज द मल्टीपाथ इंटरफेरेंसेस। मल्टीपाथ इंटरफेरेंस, इट मींस multipath interference means suppose we are sitting in the room, हम रूम में, हमारे रूम में हम बैठे हैं और हम वहां से हमारा जीपीएस डिवाइस ऑपरेट कर रहे हैं, तो हमारे घर पे सैटेलाइट्स के सिग्नल्स अच्छी तरह से आएंगे क्या? नहीं आ सकते।
तो ठीक है, डोर से या विंडो से आ सकेंगे, लेकिन वो प्रॉपरली आ सकेंगे वो हम नहीं बता सकते। सो सपोज हम डोर के पास बैठे हैं और कोई सैटेलाइट्स हमारे घर के पीछे है, पीछे मतलब पीछे से ऊपर से सिग्नल्स पास कर रहे हैं, तो डायरेक्टली हमारे पास सिग्नल्स नहीं आएंगे, हमारे पास कोई, तो आपको दिखाता हूं मैं। सो दिस इज द मल्टीपाथ, it means you are not in the proper range of the satellites. Multipath interference means you are not getting signals directly from the satellites. First these signals strike to this home, ये पहले क्या करेगा, ये वॉल को स्ट्राइक करेगा और फिर आपके पास आएगा। इसकी वजह से क्या हो सकता है, उसका जो सिग्नल ट्रांसमिट करते समय का जो कुछ लेंथ है वो हमको लेट मिल जाएगा और हमको प्रॉपर हमारी पोजीशन नहीं मिल सकता है उसकी वजह से। सो मल्टीपाथ इंटरफेरेंस इज नथिंग बट समथिंग डिस्टर्बिंग टू यू एंड सैटेलाइट सिग्नल्स। आपके और सैटेलाइट्स के बीच में कुछ कोई तो आ रहा है। और मेरे पास यहाँ पे, हाँ यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ये भी इमेज आप देख सकते हैं। सो मल्टीपाथ इंटरफेरेंस इट मीन्स some buildings are disturbing. If you are moving in the car, sometimes this car is disturbing too. Sometimes these towers, transmission towers are there, so due to transmission towers signals not getting properly to you. So multipath disturbances, some here atmospheric, earth atmospheric means some atmosphere is there and the signals are not properly coming to you. Are you getting? Multipath interferences is nothing but the signals whatever you are receiving are not directly receiving. मीन्स क्या हो रहा है, बिल्डिंग को स्ट्राइक हो रहा है उसके बाद आपको मिल रहा है, कार को स्ट्राइक हो रहा है उसके बाद आपको मिल रहा है, या जमीन को स्ट्राइक हो रहा है उसके बाद आपको मिल रहा है, या ये ट्रांसमिशन टावर को स्ट्राइक हो रहा है पहले और फिर आपके पास आ रहा है। सो दिस इज नथिंग बट द मल्टीपाथ इंटरफेरेंसेस। आर यू गेटिंग दिस सेकंड पॉइंट? Yes, sir. Then third point, satellite and receiver clock error. Satellite and receiver clock error. It means what? Sometimes there may be errors in the satellite clock also. There may be some errors in the satellite clock also. It means हम जब सिग्नल्स हमको रिसीव कर रहे हैं, हमारी पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए कुछ सिग्नल्स भेज रहे हैं, तो उस टाइम क्या हो सकता है, कुछ सैटेलाइट्स में भी गड़बड़ हो सकती है। सैटेलाइट्स क्लॉक में सब समझो एक दूसरा सैटेलाइट्स प्रॉपर रेंज में नहीं है, प्रॉपर कंट्रोल में नहीं है एंटेना के। मास्टर स्टेशन हम जो देखा 5 मास्टर स्टेशन हैं, जो 5 मास्टर स्टेशन के कंट्रोल में कोई सैटेलाइट्स है नहीं। हो सकता है कभी कभी क्योंकि सम एटमॉस्फेरिक कंडीशन से कभी कभी हो सकता है, तो उस टाइम क्या हो सकता है, क्लॉक में एरर आ सकता है। हमारा भी एरर हो सकता है। फर्स्ट में हम देखा यूजर मिस्टेक, सेकंड में हम क्या बोला कि कुछ बीच में आ गया तो हमको सिग्नल्स प्रॉपरली नहीं मिलेंगे। सो उसके बाद क्लॉक में भी एरर आ सकता है। सो इफ द एरर्स कमिंग इन द क्लॉक एंड इफ वी आर रिसीविंग द सिग्नल्स, द सिग्नल्स आल्सो मे बी रॉन्ग सिग्नल्स। थर्ड इज द clock error signals. The signals whatever we are receiving due to some errors in the clock. Clock में sometimes error आ सकते हैं। वो error उसकी जब clock में error आ गए तो हमको जो signals मिलेंगे वो signals गलत भी हो सकते हैं। Are you getting? So this is the third error, is the satellite clock error. Are you getting this also? Now then fourth is the orbit error. Orbit error, it means, so I have shown you how the satellites are moving around the earth. We have seen in the space segment satellites are moving around the earth, we have seen. So there are we have seen 4 to 5 satellites क्या करते हैं, each orbit में घूमते हैं हमारे अर्थ के अराउंड। सो उस टाइम क्या हो सकता है, कोई सैटेलाइट्स ठीक से रेंज में नहीं है तो क्या हो सकता है, उसका प्रॉपर सिग्नल्स हमारे पास नहीं आ सकता है। सो हम बोलते हैं कि हमको कम से कम 4 सैटेलाइट का सिग्नल चाहिए, लेकिन क्या हो सकता है 4 सैटेलाइट का सिग्नल मिलने के लिए उसमें भी कोई एक दूसरा सैटेलाइट्स
प्रॉपर नेटवर्क में नहीं है, अर्थ के थोड़ा दूसरा बाजू में है, और हम ऐसी जगह है कि जहाँ पे उस टाइम सैटेलाइट्स कम गुजर रहे हैं, वो एरिया में उस टाइम सैटेलाइट्स कम है, तो उस टाइम्स ऑर्बिट एरर मीन्स जो सैटेलाइट्स मूव हो रहे अराउंड दी अर्थ और जो कम उनका फ्रीक्वेंसी हमको मिल रहा है, तो और नेटवर्क रेंज कम मिल रहा है, उसी टाइम्स ऑर्बिट एरर उसको बोलते हैं हम। सैटेलाइट्स मीन्स वो ऑर्बिट में हमारे पास नहीं है सिग्नल्स पहुंचाने के लिए। आर यू गेटिंग? वो ऑर्बिट में है लेकिन वो हमारे पास नहीं है सिग्नल पहुंचाने के लिए, सो दैट इज नथिंग बट द ऑर्बिट एरर। आर यू गेटिंग? देन नेक्स्ट इज द सैटेलाइट जियोमेट्री। So as I have told you, satellite in how much inclination satellites are in the space, कितना इंक्लिनेशन में वो है, एक डिग्री में बताया था, कितना डिग्री में वो ऐसा इंक्लाइन रहते हैं? Anybody can tell me? As I have told you. Yes, yes. Some of the students give an answer me. The satellites are at the space at 55-degree inclination. If the satellite geometry of satellite, it means we have seen here. See, these are the satellites. So these satellites are at 55-degree inclination. But sometimes what happen? The user position is exactly opposite side of the satellite. At that time, due to this satellite geometry, you can see here the location of GPS satellites in the relation to the GPS receiver on the ground can impact the receiver ability to triangulate the 3D position. क्या लिखा है यहाँ पे? जो रिसीवर है और जो सैटेलाइट्स है उसका जो एक दूसरे का जो रिसीव होने का सिग्नल का पोजीशन है वो थोड़ा आगे पीछे हो गया, तो उसका 3D पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए, 3D पोजीशन मीन्स हमको क्या मिलता है? लॉन्जिट्यूड, लैटिट्यूड और अल्टीट्यूड। सो हमारी पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है ड्यू टू सैटेलाइट जियोमेट्री। If the satellite is in proper not in position to transfer the signals to particular position of that receiver, मतलब जहां पे रिसीवर खड़ा है और सैटेलाइट का पोजीशन है वो थोड़ा सा टिल्ट पोजीशन की वजह से और गलत जगह होने की पोजीशन से, दैट मीन्स सैटेलाइट जियोमेट्री इज नॉट प्रॉपर to transfer the signal towards receiver, then we are not getting the signal proper. So that is one of the error. Then next error is the atmospheric interferences. As we have seen, multipath interferences we have seen here. Second is the multipath. It means something coming to the between receiver and multipath means what we have seen, हमारे और सैटेलाइट के बीच में कोई तो आ रहा है, इट नथिंग बट मल्टीपाथ। और यहाँ पे अभी एटमॉस्फेयर के ऊपर है, वो तो वहां पे तो कोई बिल्डिंग, वहां पे तो कोई कार, वहां पे ट्रांसमिशन टावर तो नहीं आ सकता है, तो एटमॉस्फेयर में कुछ गड़बड़ हो गई और वहां पे कुछ प्रॉब्लम्स है, तो एटमॉस्फेयर से भी हमको अच्छे सिग्नल्स नहीं मिल सकते हैं, सो दैट वी कैनॉट रिसीव द प्रॉपर सिग्नल्स फ्रॉम द satellites. Are you getting? Atmospheric interferences, here again you can see. So this is the here written, what written they have? Earth atmosphere, मतलब जो ये एटमॉस्फेयर है हमारा ऊपर का, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स आ गए, चेंज हो गया एटमॉस्फेयर, तो यहाँ पे जो थिकनेस है एटमॉस्फेयर का उसकी वजह से हम प्रॉपरली डायरेक्टली, यू कैन सी हियर, यहाँ पे जो बांध दिखा है आपको दिख रहा है क्या? ये ठीक से एटमॉस्फेयर के यहाँ से जो सिग्नल्स के बाद जो दिखा रहे हैं क्या, डायरेक्शन सिग्नल्स का, सो ये इधर उधर हो जाता है ड्यू टू एटमॉस्फेयर इंटरफेरेंसेस, so that we are not receiving the signals properly. So that is the one of the error.
एटमॉस्फेरिक इंटरफेरेंसेस, ये भी एक एरर हो सकता है। यहाँ पे लिखा है द एटमॉस्फेयर कैन स्लो और स्पीड अप सैटेलाइट सिग्नल्स, मतलब सैटेलाइट के सिग्नल्स को स्लो कर सकता है एटमॉस्फेरिक इंटरफेरेंसेस। फॉर्चुनेटली एरर कॉज्ड बाय एटमॉस्फेयर कंडीशन, आइसोनाइज्ड एरर। आइसोनाइज्ड एयर इट मीन्स हमारा जो ओजोन है, देन ह्यूमिडिटी है, टेम्परेचर है, प्रेशर है, उसकी वजह से हमको सिग्नल्स लेस टाइम में मिल सकते हैं। हैज बीन रिड्यूस्ड विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द वाइड एरिया ऑगमेंटेशन सिस्टम। सो एटमॉस्फेयर में कुछ चेंजेस हो गए तो हमको सिग्नल्स लेट मिल सकते हैं। सो दैट इज वन ऑफ द एरर। एंड लास्ट इज द correction system. Correction system have been designed to reduce some of the sources of error with GPS. Means satellite clock में और हमारे GPS डिवाइस में कुछ करेक्शन सिस्टम भी है, ये एरर जो आते हैं उसको करेक्ट करने के लिए। रास्ते में खड्डे हैं तभी भी हम दूसरा जगह पहुंचते हैं कि नहीं? पहुंचते हैं, लेकिन क्या होता है, टाइम लगता है, प्रॉपर डायरेक्शन से नहीं जा सकता है। हमको जो टाइम में जाना है वो टाइम से हम दूसरी जगह नहीं जा सकते, रास्ता अच्छा नहीं है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी वैसा है, सिग्नल्स हमको रिसीव होते हैं, लेकिन क्या होते हैं, किसी दूसरी वॉल पे स्ट्राइक होते हैं, हमारे पास आते हैं। एटमॉस्फेयर में उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है कभी कभी, क्योंकि एटमॉस्फेयर का थिकनेस बढ़ गया है, कुछ प्रॉब्लम हो गए, तो एरर आते हैं। लेकिन हमारे डिवाइस में भी कुछ हम करेक्शन डिवाइस सिस्टम बस बिठा है, उसकी वजह से हमको क्या हो सकते हैं, अच्छे सिग्नल्स भी मिल सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमको सिग्नल्स नहीं मिल सकते हैं, क्योंकि जहाँ पे हम जाए वहाँ पे एडवांटेज और डिसएडवांटेज होने वाले हैं और हो ही सकते हैं। तो क्योंकि ये सिस्टम जब बना रहे हैं हम, तो कोई तो डिसएडवांटेज एडवांटेज होने वाला है। सो यहाँ पे हम करेक्ट कर सकते हैं। सो दीज आर दी सम एरर्स। Sometimes you have asked the question in examination, write errors, sources of errors or errors only. So you have to write this user mistake. First error may become due to user mistake, second error come due to multipath interferences, third error may be satellite or receiver clock, fourth may be due to orbit error, fourth may be due to satellite geometry, fifth may be due to atmospheric and correction system. So these are the some errors while receiving the signals from satellite to receiver. Are you getting about the all errors, everyone? एरर की वजह से हम क्या कर सकते हैं, सिग्नल्स हमको प्रॉपरली नहीं रिसीव कर सकते हैं। ओके, नाउ अगेन यहाँ पे सम सोर्सेस ऑफ एरर्स में सम स्केचेस मैंने दिखा है। सो देयर आर मे बी वी हैव सीन 7-8 एरर्स, but these three are main errors also. So you can see here multipath, PDOP, SNR. So what is multipath, that we will see. So this is the good signal transferring process. These are the satellites. Here this we are getting the signals, and this is the person with the GPS device. So we directly signals coming to this. This is the good. But next is the multipath. I have shown you this sketch. Multipath, it means directly signals not coming to us, the signals of what we are seeing. These signals are transferring, coming to us through disturbances. This is the multipath. Then second PDOP I have told here, position dilution. Yes, obstacles. Mansi corrected me. This is the obstacles. Okay, correct. Then position dilution of precision. It means, see, these are the 4 satellites from the